Good evening, everyone. Innervale greetings to all. I'm Sangeeta Agarwal, President Innervale Club of InfoCity Bhubaneswar. I request Mrs. Sagarika Samal, President of Innervale Club of Bhubaneswar Royal, and our District Chairman, Mrs. Inna Purohit, to put on their respective collars. The meeting is called to order. Now I invite our club secretary, the club secretary of Innervale Club of InfoCity Bhubaneswar, Mrs. Sarmista Das, to recite the Innervale prayer. Sarmista Das for Innervale prayer. Instill in us, O Lord, the true meaning of friendship. Never let us forget that we are all the children. Notwithstanding the difference in our culture and creeds, endow us with a desire to serve our fellow man, remembering that we too often need help. Whenever or wherever the need for service arises, help us to be ready to serve, endeavoring to make our batch of inner will worthwhile, ensuring that we have not lived in vain. Thank you. Thank you, Sarmista. It is in our tradition to invoke the gods for the success of the program. So we start our webinar on rainwater harvesting, Chal Hai To Kal Hai, by lighting the lamp. So I request our district chairman, Mrs. Inna Purohit, our keynote speaker, Mr. Gautam Agarwal, and all the district executive committee members and other dignitaries to join us for the lighting of the lamp. कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Thank you. Mrs. Margaret Oliver Golding is the founder of Innervale, and it has become the largest voluntary women's organization over the years. So before we start the event, we would like to pay a floral tribute to her. Thank you. Past president of Innervale Club of Cuttack Silver City, Mrs. Madhuchanda Maharana, lost her battle to COVID-19 yesterday. An ever smiling, helpful, energetic, and very active member of Innervale, she left for the heavenly abode on Friday afternoon, leaving behind an irrepressible vacuum. Let's observe a minute's silence in her honor.
स्कंदाप्पा, आप जहाँ पे भी रहें, भगवान आपकी आत्मा को शांति दें, यही हमारी दुआ है. Now, our district secretary, Mrs. Rasika Bahadur, would read out the condolences messages. Please put on the photograph of Madhuchanda. Please display on the screen, Mohit. Good evening, everyone. I, Rasika Bahadur, District Secretary 326, on behalf of District Executive Members, District CCCC, District Webmaster, and all past District Chairmen, convey my deepest condolence to the Maharana family and to all the members of Innerville Club of Cuttack Silver City for the sudden demise of our own Innerville Madhuchanda Maharana. May the noble soul rest in eternal peace. I have received condolence messages from all association executive members and almost all all members of district, all 27 districts. They've conveyed deepest condolence for the Madhuchanda ji. So I pray God for the eternal peace of Madhuchanda Maharana. Thank you. Ina ma'am, if you wish to say something. Good evening, everyone. A noble and pious soul who was always there to help everyone, to help each and every needy. That's the name of Madhuchanda Maharana. The noble soul is not among us today, but our heartiest prayer that with the prarabdha she has done in this birth may take her nearest to God. She was God's angel, and God has taken that angel to him. May God give strength to her family and to all of us to bear this irreparable loss done to Innerville District 326. Thank you, Sangeeta. Move ahead. Now, back to our webinar. I request Mrs. Sagarika Samal, President of Innerville Club of Bhubaneswar Royal, to give her welcome address. Thank you, Sangeeta ma'am. I feel honored to welcome all the dignitaries and participants to this webinar. This has been a well-planned and cherished topic being duly acknowledged by our chairman for a webinar on rainwater harvesting, especially rooftop rainwater harvesting. So our Innerville Royal Club jointly with Innerville Club of Bhubaneswar Infocity co-hosting this webinar. At the outset, I welcome our district chairman, Mrs. Inna Purohit, for her august presence in this evening along with us and giving us an opportunity to host this webinar. I am happy to welcome all the EC members who are joining in this webinar. I feel honored to welcome all our past district chairmen who are with us to encourage all of us. I feel privileged to welcome our chief speaker, Mr. Gautam Agrawal, who is the resource person and going to enlighten all of us on the burning topic of today. On this occasion, I feel delighted to welcome all the beautiful, energetic presidents, zonal coordinators, all Innerville sisters. I heartily welcome our Rotary Royal President, Mr. Basant Das, Rotary Infocity President, Mr. Vibhuti Das, and hello
Rotarian friends whose presence actually make this evening meaningful. Dear all, I am pretty sure this webinar will be a success with all your participation and taking forward the knowledge and need of the time a step forward in coming days. Now, I handed over to Sangeeta ma'am to carry forward the proceeding of the webinar. Thank you. Thank you, Sagarika. In India, we have seasonal, erratic, and uneven rainfall. Every summer, as the summer sets in, water becomes scarce across the length and breadth of India. The topic of today's webinar is very relevant, rainwater harvesting. And the focus will be how to catch the rain by each and every household. The main purpose of this webinar is to create awareness regarding the scarcity of water, the things which every household and every person can do in their own little ways to harvest the rainwater and save water for future use. It is widely believed that if there will be a third world war, it will be over water. To overcome this scarcity of water, rainwater harvesting is the need of the hour. With the help of this harvesting techniques, water can be conserved and used during the dry season. So we can mitigate water scarcity to a huge extent only through rainwater harvesting. When we speak of Catch the Rain campaign, what is it? The National Water Mission campaign, Catch the Rain, has the tagline, Catch the Rain where it falls, when it falls. So let's know what is this Catch the Rain is all about. Isn't water precious? How can we make sure there's enough? Well, we can think of different ways to save water all around. Here's a song called Catch the Rain. Sing along. Look out the window, can't go out to play. Yesterday, the day before, or even today. Rain is falling and flowing in the street. Let's have fun, so get on your feet. Let's catch the rain. Don't let it go down the drain pipe. Don't let it go. Catch the rain. Catch the rain. Don't let it go. In every house and every building, fix the pipes, fix all of the plumbing. Rain falls down right into the tank. Water's more precious than money in the bank. Let's catch the rain. Don't let it go down the drain pipe. Don't let it go. Catch the rain. Catch the rain. Don't let it go. Use it for the garden when the sun is shining bright. Use it to wash your clothes. Use it to clean all your important things, but use it carefully, no waste at all. There's a small tank at home, a big one at school. Save the rainwater, make it a rule. Everybody catch the rain today. Don't let any flow away. Let's catch the rain. Don't let it go down the drain pipe. Don't let it go. Catch the rain. Catch the rain. Don't let it go. Don't let it go. Don't let it go. So don't
not let it go. Don't let the rain go. Before delving into the actual deliberation on rainwater harvesting, we would like to show you a small animation on it to give a fair picture of what is it all about. Have a look. अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पानी की कमी हो तो आपको साफ पानी की कीमत पता होगी। आपने यह भी जरूर सोचा होगा कि बारिश में कितना पानी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है कि हम उसे संजो कर नहीं रख पाते। अगर हम इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा भारत में बारिश के पानी को स्टोर कर रखने की परंपरा सदियों पुरानी है। हम साफ पानी की समस्या को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से दूर कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के पानी को जमा कर रखना ताकि उसका उपयोग अपने घर के कामों के लिए या फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए किया जा सके। आइए देखें ये तरीका कैसे काम करता है। जब बारिश होती है सबसे पहले बारिश का पानी घर की छत पर या टेरेस पर इकट्ठा होता है। इसे कैचमेंट कहा जाता है। बारिश का पानी कैचमेंट के द्वारा पाइप से होते हुए स्टोरेज फैसिलिटी में जाता है, जो एक छोटी प्लास्टिक की टंकी, जमीन में बनी हुई सीमेंट की टंकी या फिर कुआं भी हो सकता है। इन पाइपलाइंस को कॉन्ड्यूइट्स कहते हैं। अब क्योंकि छत पर जमा पानी में पत्थर या कंकड़ हो सकते हैं, इसलिए छत पर पाइपलाइंस के मुंह के पास एक फिल्टर या छलनी लगी होती है जो इन अशुद्धियों को पाइप में नहीं जाने देती। इन पाइपलाइंस के द्वारा हम पानी को छोटे स्टोरेज टैंक में स्टोर कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कुछ दिनों तक किया जा सकता है या फिर पानी को कई महीनों तक इस्तेमाल करने के लिए स्टोरेज टैंक या रिचार्ज फैसिलिटी में छोड़ दिया जाता है। नेचुरल सॉइल में पानी पहुंचने के कारण पानी प्योरीफाई भी होता है और धरती का जल स्तर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें कई महीनों तक डग वेल यानी कुएं में पानी मिलता रहता है। इस पानी को हम बोरवेल के द्वारा भी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में पाइपलाइंस, जिसे रिचार्ज ट्रेंच कहते हैं, उसके द्वारा बारिश के पानी को रिचार्ज पिट में पहुंचा दिया जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है और फिर बोरवेल के द्वारा इस साफ पानी को निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपनाकर पानी की कमी की समस्या से निपटा जा सकता है। भारी बारिश के दिनों में संजो कर रखा हुआ पानी हम पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर अपनानी चाहिए। Ma'am, I think you're facing some internet issues. We're not able to hear you properly.
I think Sangeeta ma'am is facing mental issues. Hello? Hello? Hello, yes ma'am. Hello? Shall I start? Yes ma'am. Thank you, Sangeeta. Very good afternoon to all the attendees of this worthwhile webinar on rainwater harvesting. Jal hai to kal hai. My inner will namaskar to one and all. I feel much privileged to read out the personal narrative of our ever-smiling, charismatic district chairman, Mrs. Ina Purohit. As every one of us know very well about our most energetic and very passionate district chairman, Madam Ina Purohit, I am not going to read about her in detail. This year, she has launched a very powerful message, Udaan Ek Nayi Duniya Ki Or, to embrace during her tenure to lead the change. Modern in her approach, she focuses on today's most needful issues like e-waste management, environmental protections, and rainwater harvesting, which is a technique to preserve rainwater in surface storage tanks before it is lost as surface runoff. Her tagline is, if we can dream, we can do it. With this, I am presenting before you an ever happy and positive person, our District Chairman, Madam Ina Purohit. Thank you. Now I am requesting our District Chairman, Madam Ina Purohit, to address the August gathering. Thank you, Madam Rasmi Rekha ji, for the brief introduction. Club President of Bhubaneswar Royal, Sagarika ji, Secretary Kalpana, Club President Infocity Bhubaneswar, Sangeeta, President, Secretary Sarmistha, all the district executive committee members present over here, all the past district chairmen present over here, Zonal Coordinator Lokamudra Mishra and other zonal coordinators, keynote speaker Mr. Gautam Agarwal, Rotary President of Bhubaneswar Royal, Mr. Basant Das, Rotary President of Infocity Bhubaneswar, Rotarian Vibhuti Das, Rotarian Smaran Kumar Mishra, Rotarian Jyotish Kumar Tripathi, and all the Innerville members and presidents of other clubs present over here. Innerville Namaskar to all. First of all, I would like to congratulate Innerville Club of Infocity Bhubaneswar for coming up with this idea, and Innerville Club of Bhubaneswar Royal for joining their hands for this informative webinar of today. As you all know, we are passing today through a very sad news, but the person who has left us, she was always believing in duty is God. And जैसे आपने बोला, उड़ान एक नई दुनिया की ओर, मेरी उड़ान की जो नई दुनिया की ओर थी, उसमें वो एक पंख थी. So आज वो पंख की स्मृति में आज की ये वेबिनार समर्पित है उन्हीं के लिए. नई दुनिया, सॉरी, जल है तो कल है. Very nice and informative song which you all are prepared. Don't let it flow away. Catch the rain, don't let it go. Yes, dear friends, don't let it go. धरती पर बारिश की बूंदें, धरती पर बारिश की हर बूंद लोगों के लिए भगवान की आशीर्वाद की तरह होती है. ताजे बारिश की पानी जमीन पर मोती के समान गिरता है और इसके महत्व को हमको समझना चाहिए दोस्तों. Rainwater harvesting is very much important in the present scenario because we are facing a lot of water scarcity, and जैसे संगीता ने बोला कि maybe the third world war may be due to the scarcity of water. So time has come to understand the importance of water. Rainwater is an economical way to save water and prevent rainwater wastage. वर्षा जल संचयन भविष्य में उपयोग के लिए टैंकों और अन्य जलाशयों में वर्षा जल के संरक्षण करना बहुत जरूरी है ताकि इस प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी ना हो. अभी विश्व स्तर पर इसका अभ्यास किया जाता है
और बारिश के पानी की कटाई और पानी के बर्बादी को रोकने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। आज हमारे साथ जो हमारे रिसोर्स पर्सन है वो ही हमको बताएंगे कि हमको क्या क्या करना चाहिए और कैसे कम खर्च में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देते थे, लेकिन हमने जो सर्वे किया है अभी वो बंद हो गया है। बट वी कैन हैव अ बेटर आइडिया टुडे फ्रॉम आवर रिसोर्स पर्सन हाउ टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन आवर होम्स आल्सो with a small amount of expenditure. My dear friends, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ जो हमारे लाभ है उसको क्यों किया जाना चाहिए, मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगी, उसके बाद वी विल लिसन टू आवर स्पीकर्स टुडे। यह जल आपूर्ति भार और नगर पालिका के बिजली के बिलों को कम करने में मदद करता है। ग्रामीण इलाकों में मुफ्त पानी की आपूर्ति फसल उत्पादन में सुधार करता है और इस तरह खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में घरों या व्यक्तियों की असुरक्षा को कम करने में मदद करती है, जो पानी की संकट है उसको दूर करती है। यह जल क्षेत्रों की कमी में आसान और कम लागत वाली जल आपूर्ति प्रदान करता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और आय सृजन में मदद मिलती है। तमिलनाडु भारत की एक ऐसी राज्य है, ये हमारे लिए एक जानने का विषय है। तमिलनाडु भारत की राज्यों में से एक है और अब यह पहला भारत की राज्य है जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी बनाया गया है। पानी की इतनी स्कैर्सिटी है वहां पे कि वहां पे ये कंपलसरी बनाया गया है, हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रोजेक्ट या टंकी होना चाहिए। अभी हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए सुनते हैं हम कैसे छोटी छोटी जगह पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कम खर्च में कर सकते हैं और समाज को थोड़ी सी योगदान हमारी तरफ से दे सकते हैं वर्षा जल की संरक्षण करके। थैंक यू। Thank you, Hina ma'am. Thank you so much. But before we go and listen to our keynote speaker, I would like to say something कि जो जल का महत्व है, जल है तो कल है, हम लोग का जो ये टैगलाइन है उसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि पानी का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। कभी जल की महत्ता को बयां हम नहीं कर सकते, बिना पानी के जीवन में हम रह नहीं सकते। बचाए नीर की हर बूंद को हम साथ में मिलकर भूखे रह नहीं सकते, कभी जल की प्यासे रह नहीं सकते, कभी जल की महत्ता को बयां हम कर नहीं सकते। तो हम लोगों को जल को संरक्षण, हम लोग संरक्षण तो करेंगे, उसको बचाएंगे भी और उसकी जितनी जरूरत है उतनी ही यूज करेंगे। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो। हाथ जोड़ फिर सबसे बोले बोले, थोड़ा आप बचाएं पानी, अपनाएं ये सोच सयानी, थोड़ा आप बचाएं पानी, अपनाएं ये सोच सयानी। ये कहते पानी के ज्ञानी, तब कम होगी परेशानी। हो नदियों से तालाबों से जब अब नहीं होगी छेड़खानी, जब एक बूंद ना व्यर्थ बहेगी सब प्यासों को मिलेगा पानी। अपनाएं ये सोच सयानी, पहले स्वयं बचाएं पानी, अपनाएं ये सोच सयानी, पहले स्वयं बचाएं पानी। हाथ मुंह धोने में हम सब जरूरत जितना ही ले जल, बीच बीच में करना सीखे बंद उसे जो खुला हो नल। छोटी छोटी आदत डाले सच में जिनसे बचे है पानी। अपनाएं ये सोच सयानी, पहले स्वयं बचाएं पानी, अपनाएं ये सोच सयानी, पहले स्वयं बचाएं पानी। घर नहीं बचाया अब ये जल तो बड़ा भयानक होगा कल। विश्व युद्ध का कारण की बार नहीं बन जाए जल। आओ प्रेम
से जीते उनका दिल जो नहीं बचाते पानी। अपनाए ये सोच सयानी, पहले स्वयं बचाए पानी। अपनाए ये सोच सयानी, पहले स्वयं बचाए पानी। बारिश में जो गिरता पानी, करे इकट्ठा मन में ठानी। हर घर में हर गांव शहर में लानी ही ये सोच सयानी। तभी तो अपनी धरती माता कहलाएगी ग्रहों की रानी। अपनाए ये सोच सयानी, पहले स्वयं बचाए पानी। 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 अपनाए ये सोच सयानी। तो अपनाए ये सोच सयानी, पहले स्वयं बचाए पानी। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। Now I would like to request our joint secretary, club's joint secretary, Dr. Gayatri Patnaik, to introduce our guest speaker. Thank you, Sangeeta. Innerville greetings to all of you. I'm very privileged to introduce our key note person, Mr. Gautam Agarwal, before you all. Mr. Gautam Kumar Agarwal is a trained professional in rainwater harvesting from Center for Science and Environment, New Delhi. Accredited professional from Indian Green Building Council, where rainwater harvesting plays an important role. Presently, he is the founder of Prakruti Vastukala, an architectural consultancy firm that focuses in climate responsive and green building with green building projects like schools, Tata Steel campus, Reserve Bank of India, and various other projects have incorporated rainwater harvesting. Prakriti, the green story in the social organization, is the social organization which focus on social change in society, focusing more on climate change. 14 acres of areas in front of Kalinga Stadium of Reserve Police have been undertaken by this organization, which also includes rainwater harvesting, is also funded by Prakriti with the help of other organizations. Prakriti provides various seminars and free consultancy to any individual for rainwater harvesting in non-commercial projects. With this, I am welcoming Mr. Agarwal to deliver his deliberation on the topic. So thank you all. Thank you, ma'am, for the introduction. Thank you, dear district chairman, and from both the clubs of Innerville for giving this opportunity. Mohinji, can I share the screen? Yes, sir, you can. Good evening once again, everyone present in the session. In this session of rainwater harvesting, we will be discussing the purpose of the rainwater harvesting, how it actually goes on, why, where, when, and few other queries will be, we will try to get the answers to those queries. We need to understand, like, there is water everywhere. There is a proverb, there is a saying, water, water, everywhere water, not a single drop to drink. We see in news today
that most of the news after COVID is related to floods. The excess of floods in everywhere, maybe in Mumbai, maybe it in Bihar, maybe it in the Northeast. But though we have plenty of water, why there is a discussion on rainwater harvesting where we are speaking about scarcity of water? So the myth between the excess of water and the scarcity of water is the deficiency of water, and the solution to it is rainwater harvesting. I just want to make it clear through this slide that what is the resource center of water on our planet Earth. As we see, there is 71% of water on Earth and 21% of the space is land. When we have 71% of water, why there is a need that we talk about saving water? As most of us know that out of this 71% of water, 97% of water is salt water. जो पानी हमारे धरती में है उसमें से अधिकतर 97% नमकीन पानी है जो हमारे डायरेक्ट किसी काम का नहीं, और मात्र 3% पानी, only 3% of the water is the fresh water. And out of that 3% fresh water, the 99% of that is non-usable. Those are in the glaciers, in the other form, and only 1% of that 3% is usable. That's found in your rivers, lakes, and from the other places from where you pump it out. So altogether, it is decimal 0.03% of water is usable. And today we are talking about saving that decimal 3%. So there is something called water cycle. When we were in school, we used to learn this or understand this in standard 2, 3, 4. ये एक प्रकृति का नियम है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, जिसमें समुद्र का नमकीन पानी भाप बन के बादल बनता है और उड़ के वापस हमारे धरती के ऊपर आता है और हमें वर्षा के रूप में वापस धरती में मिलता है. The saline water of the sea actually converts back into the neutral water, natural form of water, and comes back as rain. And those water gets infiltrated, like जो धरती के अंदर शयन होके हमारे धरती का पानी का लेवल को मेंटेन करता है. यही पानी हमारे नदियों में भी बहता है, यही पानी हमारे पहाड़ों में रहता है, यही पानी नीचे जाता है जिसे हम यूज करते हैं. So that wonderful process of water cycle goes on, जिसके कारण हमारे धरती में जीवन रह पा रहा है. हमें कंटिन्यूस नेचुरल वाटर का रिसोर्स मिलता जा रहा है. बट विद टाइम हमने क्या किया, हम घर बनाए, जो कि बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हम एक सोशल बीइंग है. वी आर द सोशल बीइंग. हम होमो सैपियंस हैं. तो हमने अपने प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सारी सुविधा बनाए और हमने बहुत सुंदर सुंदर घर बनाया, बहुत सारा बोरवेल बनाया, बहुत सारा पानी निकाला, बहुत यूज किया और अच्छा किया, कोई बुरा नहीं किया. सन 1900 में करीब 10% आबादी हमारे शहरों में बस रही थी, अर्बनाइजेशन हो रहा था. 1950 में 17%, 2000 में 27%, 2020 में 35% और 2030 में करीब 40% लोग शहरों में रहेंगे. ये भी कोई बुरी बात नहीं है. अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस. So where the mistake is done by us during the process of urbanization is the only matter of concern. When we were in this process of urbanization, with time we felt that there is a lack of space for our parking of cars. We felt that there is lack of space for our other necessities. With time we felt that there is an issue with the gardener and it is very difficult to maintain the soil. तो पूरा उसको सीमेंटिंग करवा देते हैं, बस पाइप से पानी मारेंगे और साफ हो जाएगा. With time we felt that gardener is a difficult thing. With time we felt that it is the easiest process कि अगर हम सब जगह टाइल्स लगवा दें, साफ सुथरा घर रहेगा, सांप बिच्छू कीड़े नहीं आएंगे. आज की डेट में भुवनेश्वर में मैक्सिमम अपार्टमेंट्स में पूरा फ्लोरिंग कर दिया जाता है, कहीं भी एक पौधा नहीं होगा.
कुछ घरों में, मैक्सिमम घरों में खिड़की में कहीं छोटा सा एक तुलसी का पौधा लटक रहा होगा, क्योंकि आपका धर्म कहता है कि आपको तुलसी की पूजा करनी है। लेकिन पेड़ के नाम पे शायद ही कुछ अपार्टमेंट्स में कुछ मिलेगा, वरना सब जगह टाइल्स लगा दिया गया है। जब बारिश होती है, ये पानी गिरता है, बारिश के रूप में हमें भगवान से मिलता है। हम इस पानी को रास्ता दिखा देते हैं ड्रेन का, सब पानी बहते हुए ड्रेन में चला जाता है, ड्रेन से रिवर में चला जाता है, रिवर से वापस जाके वही नमकीन पानी सी में मिल जाता है। हम उस टाइम को महसूस करते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं फ्लड्स के बारे में, आसपास के ब्रिजेस में जाके नज़ारा देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाते कि ये पानी जो बह के वापस नमकीन हो जाएगा, बारिश तो 4 महीने होगी, 8 महीने जब वाटर लेवल नीचे चलता जाएगा तो आगे हम कब तक हमारे बोरवेल्स को संभाल पाएंगे। आपको जान के एक बात हैरानी होगी, चेरीपुंजी बहुत फेमस है, हर जीके बुक्स में रहता है, यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, अधिकतर रेनफॉल मैक्सिमम करीब 11,000 mm, जबकि इंडिया का एवरेज 1170 है और पूरी दुनिया का एवरेज 800 है। यानी भारत में पूरी दुनिया का एवरेज से भी ज्यादा रेनफॉल होता है, यानी हमारे ऊपर ज्यादा आशीर्वाद है। लेकिन चेरीपुंजी में भी पानी का शॉर्टेज होता है कुछ महीनों में, क्योंकि वहां पे वाटर स्टोर नहीं हो पाता, रिचार्ज नहीं हो पाता, वो ऐसा टेरेन में है कि वो पानी बह जाता है। वहां लोग बहुत कोशिश करके स्टोर भी करते हैं, लेकिन हाईएस्ट दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल होने पर भी अगर प्रकृति आपके फेवर में नहीं है या आप अपने रिसोर्सेज से फेवर में नहीं है तो आपको भी शॉर्टेज हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है कि ये जो बारिश का पानी बह बह के नदी में चला जा रहा है, नदी में जा रहा है और नदी से समुद्र में जाके नमकीन हो जा रहा है, सलाइन हो जा रहा है, उस प्रोसेस को चेक करके वापस को हम ज्यादा से ज्यादा धरती में भेजें पानी को और उसे नमकीन होने में रोकें और हमारे वाटर लेवल को बनाए रखें। इस शब्द को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द ओनली डेफिनेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज चेकिंग the rainwater back to earth and to the maximum possible। हर बूंद को बचाना नहीं है, जितना हो पाए उतना ही बचाना है, बहुत है। And the process by which we take back the rainwater to earth is rainwater harvesting। कोई रॉकेट साइंस नहीं, just a process। हमको अपने ड्रेन में जाते हुए बहते हुए पानी को चेक करना है, that's it। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम अधिकतर 2 वर्ड सुनते हैं, रिचार्ज, स्टोर। क्या करना चाहिए? स्टोर करना चाहिए। कितना बड़ा टंकी बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या फिल्टर कैसे होगा, कुछ नहीं है इसमें। आपको बस कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस इसलिए लगाना है कि हमारे यहाँ साल में 4 महीने बहुत अच्छी बारिश होती है और बाकी टाइम थोड़ी मोड़ी कभी कभार बारिश हो जाती है। भुवनेश्वर, खासकर ये पार्ट ऑफ उड़ीसा, जो लो डिप्रेशन होते रहता है, साल में 8 से 10 बार लो डिप्रेशन होता है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि हमें स्टोरेज करना है कि रिचार्ज करना है? जहां वाटर इज ए हाई स्केयर एलिमेंट, जहां पानी खरीद के लाया जा रहा है, वहां पे स्टोर करना एक वायबल ऑप्शन है। बट अगर आज के डेट में हम इस पार्ट ऑफ उड़ीसा में जहां हम हैं, वहां अगर रिचार्ज भी करते हैं और अपने घर का एटलीस्ट 50% पानी को भी मिट्टी का रास्ता दिखाते हैं रादर देन उसको नाली में छोड़ने का, ऐसा अगर भुवनेश्वर का 20% पॉपुलेशन भी करेगा तो शायद किसी को भी बारिश की पानी की कमी नहीं होगी। मैं आपको कुछ ये इस बात को, जो टिपिकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग एलिमेंट्स, हमने वो एनिमेशन की तरह बहुत अच्छी तरीके से मैडम ने दिखाया। कैचमेंट, जहां पानी गिरता है, कंडुइट, जहां से पानी जाता है, रिचार्ज फैसिलिटी, जहां से हम पानी को धरती के अंदर भेजते हैं। वेरी सिंपल। अभी हमको समझना पड़ेगा हम क्या करें। जो गलती हम अनजाने में करते हैं, हम जानबूझ के कभी भी पानी को जाने नहीं देते हैं। हम जब टाइल्स लगाते हैं घरों में, टाइल्स लगाते हैं तो 95% पानी वो कंक्रीट और टाइल्स से बह बह के ड्रेन में चला जाता है। वहीं पे अगर हम पेवर लगाएं, पेवर यानी जो पेट्रोल पंप्स वगैरह में आप देखते हैं पेवर लगा रहता है, लेकिन पेवर बालू के ऊपर लगाया जाता है। कई बार लोग अपना काम बढ़े नहीं, टेंशन पाले नहीं बोल के सीमेंट करके उसके ऊपर लगा देते हैं। लेकिन अगर पेवर सही तरीके से लगे तो 75% पानी बह जाएगा, 25% धरती में चला जाएगा। अगर आप ग्रास पेवर लगाएं, यानी बीच में जो होल्स होता है जहां से घास उगे होते हैं, तो 60% पानी धरती में जाएगा और 40% बह जाएगा।
आप कुछ ना लगाए, खुला खुला जमीन छोड़े, थोड़ा पानी को सांस लेने की जगह दें, जहां से पानी धरती में घुसने का जगह पाएगा, तो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम अपने घर का पूरी जमीन को सीमेंट टाइल्स ना करें, कुछ जगह छोड़ें, मिट्टी से जगह, जहां से हम पानी को धरती में वापस भेजेंगे। उस जगह का तो जाएगा ही, हमारे छत का, पार्किंग एरिया का, बाकी जगह का पानी को भी हम वहां का रास्ता दिखा दें। मैं आपको कुछ केस स्टडीज दिखा रहा हूँ। हमारे दिमाग में एक चीज होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पहले कोई टेक्नीशियन आएगा, कोई एक्सपर्ट आएगा, मेजरमेंट लेगा, पाइपलाइन करेगा, फिल्टर लगाएगा। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपके घर में 16 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। 4 फुट में 4 फुट की अगर आपके घर में जगह है, जो आप अपना वो जगह को बलिदान कर सके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, उसके ऊपर भी आप गमले में पौधे रख सकते हैं। ये पुलिस रिजर्व का फोटोग्राफ है आपकी स्क्रीन में। यहाँ पे वहां पे काम करते लोगों ने, माने पुलिस ऑफिशियल जो ड्यूटी में रहते हैं और उनका ऑफ रहता है, ये अपने ऑफ डेज में पुलिस ऑफिशियल्स ने खुद से खुदाई की। रिंग्स मिलता है भुवनेश्वर में बहुत इजीली, नंदो बोलते हैं जिसको हम, जिससे पानी की टंकियां भी बनती है। उन्होंने रिंग्स लाया, डाल दिया जमीन पे, करीब 6 फुट 7 फीट जितना गड्ढा कर पाए, क्योंकि कलिंगा स्टेडियम के पास है, यहाँ बहुत पथरीला जगह है। हमको ऐसा लगता है कि पथरीला जगह है, पानी नहीं सोखेगा, इतना बारिश ही नहीं है, पानी आराम से सोखेगा, जितना सोखना है सोख लेगा, ओवरफ्लो वापस चला जाएगा। उन्होंने एक्सकावेशन किया, गड्ढा किया, रिंग्स डाला, बारिश का पानी का पाइप जो नीचे की ओर है, तो थर्ड फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, ये पहले बह के वापस नाली में चला जाता था, उसको बस कनेक्ट कर दिया इन रिंग्स की तरफ। क्योंकि छत बहुत बड़ा था तो उन्होंने 4 एक्सकावेशन करके चारों को इंटरकनेक्ट कर दिया। क्योंकि पथरीला था, बहुत ज्यादा अंदर खोद नहीं पा रहे थे, तो करीब 4-4 फुट का 4 बना दिया और उसे ऐसा कनेक्ट कर दिया। अब जब बारिश हुई तो सारा पानी एक बूंद भी बह के नाली में नहीं गया, सारा पानी इन ट्रेंचेस के माध्यम से धरती में चला गया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। इसमें ना ही कोई रॉकेट साइंस लगा, ना ही कुछ अलग प्रोसेस लगा। फिल्ट्रेशन की बातें मैं आगे करता हूं। जैसे ये रिंग्स जो नंदो आप देख रहे थे, उसमें हम नीचे में पेबल्स यानी नदियों में मिलने वाला पत्थर, थोड़ा बड़ा साइज का, माने करीब 4 से 6 इंच का रख डाल दिए नीचे। उसके बाद हम एग्रीगेट्स डाल दिए, गिट्टी जो हम छत की ढलाई करने में यूज करते हैं, कहीं भी मिल जाएगा। उसके हम ऊपर थोड़ा बालू डाल दिए। तो ये एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि हम 2-3 बार आज के सेमिनार में डिस्कस कर लिए अलग अलग एमिनेशन के द्वारा कि जो छत में गिरे हुए जो डस्ट पार्टिकल्स, जो थोड़े मोड़े कचरे वगैरह, हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे धरती में वापस जाके धरती के पानी में मिले। हम ये चाहते हैं कि ये पानी जब जाए तो थोड़ा छनता हुआ जाए, क्योंकि घूम फिर के वापस अपने ही टंकी में आएगा। इस तरीके से ये स्टोरेज टैंक बनाने से ये टैंक का 2 फायदा, एक तो ये फिल्टर भी करता है, और क्योंकि जब बारिश जोरदार होती है तो पानी बहुत मात्रा में आता है, तो एक साथ धरती उसको सोख नहीं पाता है। तो इन टंकियों के द्वारा वो पानी को एक स्पेस मिलता है कि वो अपने आप को धीरे धीरे सेटल करके एब्जॉर्ब हो पाए। तो रेन वाटर ऐसी कोई भी टंकी, प्लास्टिक का ड्रम या कोई भी मॉडल से आप बना सकते हैं फिल्ट्रेशन टैंक, जिसमें ये पानी, आप बस बारिश का पानी को वहाँ रास्ता दिखाएं, वो पानी यहाँ से ऑटोमेटिक फिल्टर होके निकले और आपके कुआं में, आपके सूखा हुआ बोरवेल में, या कोई इसी ट्रेंच में भी धीरे धीरे सोख कर लेगा। अगर ये जो नंदो का ट्रेंच आप देख रहे हैं, इसके नीचे हमने कुछ नहीं किया है, बस इसे 6 फीट 7 फीट जहां जितना हो पाया खोदा। जब हम ट्रेंच बनाते हैं तो हम बहुत ज्यादा एरिया का पानी नहीं छोड़ सकते, करीब 800,000 स्क्वायर फीट के लिए एक ट्रेंच बनाना जरूरी है, नहीं तो वो ओवरफ्लो करने लगेगा। और इससे अधिकतर हम ये कोशिश करें कि हम 100% ना करें, हम 30%, 40%, 50% जितना आराम से कर पाए उतना ही करें। खर्च कम करें, पानी को धरती में जाने का रास्ता दिखाएं और स्वच्छ पानी को धरती में भेजें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सा तरीका है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत छोटा ही है। अभी मुझे बहुत खुशी हुई, मैं आप ही के क्लब, इनरवेल क्लब के कुछ मेंबर्स के घर गया, जो आपके प्रेसिडेंट हैं मिसेस सागरिका सामल जी, उनके घर गया। आई वाज सो सरप्राइज, मुझे देख के मजा आ गया। उन्होंने अपने घर में बारिश का पानी का पाइपलाइन को नीचे आने दिया है, रेन वाटर इनलेट जो आप देख रहे हैं, उसे एक नंदों से बना हुआ 4 नंदों को जोड़ के एक टंकी बनाया, जैसे कि बारिश का पानी
ऑलरेडी आप जैसे छत में टंकी बनता है ऐसा ही टंकी बनाया, उसमें उन्होंने चारकोल, पेबल, सैंड, उन्होंने चारकोल इसलिए डाला जो मैं समझ पाया क्योंकि वो डायरेक्टली उस पानी को यूज भी कर रहे हैं, यानी वो पानी हम तो नीचे भेजने की बात कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट अपने छत पे भी भेज दे रहे हैं वापस टंकी पे, तो वो चारकोल से होते हुए भेज रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। एक्टिवेटेड चारकोल ही यूज करना चाहिए अगर आप चारकोल यूज कर रहे हैं, एंड उसमें पानी में रहने वाले कुछ बैक्टीरियाज को चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल हेल्प करता है हमें उसे प्यूरिफाई करने के लिए। अगर आप पानी को धरती में भेज रहे हैं तो चारकोल नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। वो बहुत बढ़िया तरीके से उसे फिल्टर कर रही है, उसे अपने वापस अपने अंडरग्राउंड टैंक में भेज रही है और वहां से पंप करके वापस अपने छत पे भेज रही है। मैं फिर मैम के साथ एक और घर गया और वहां मुझे देख के और मजा आया। कल्पना बिस्वाल मैम, ये भी आप ही के इनरव्हील क्लब भुवनेश्वर रॉयल से हैं। वहां पे एक और बात मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, सागरिका मैडम के घर में एंड कल्पना मैडम के घर में जितना बड़ा घर है उससे कई बड़ा उनका खाली जमीन है जिसमें उन्होंने सीमेंटेड फ्लोरिंग नहीं किया है, टाइल्स नहीं लगाया है, मिट्टी है, पानी बिंदास बहुत बेहतर तरीके से धरती में सोख कर रहा है। वो नहीं जानती लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे ही कर रहे हैं डेली अपने आप, और छत में आने वाले पानी को भी उन्होंने प्रयास करके इस फिल्टर के द्वारा उस टंकी में डाल के, और यहाँ पे मैम ने एक बहुत ही सुंदर छोटा सा पोर्टेबल फिल्टर लगाया है जो कि rainifilters.com कंपनी का बना हुआ है। रेनी फिल्टर्स अवेलेबल है मार्केट में भी, मैंने इंक्वायरी किया, वेबसाइट में भी अवेलेबल है। और जरूरी नहीं कि आप रेनी फिल्टर का फिल्टर ही लगाएं, आप एक छोटा सा पाइप में भी गनी बैग बोरे को फोल्ड करके भी फिल्टर बना सकते हैं। रेनी फिल्टर क्या करता है, इसमें एक जाली है, एसएस की जाली बनी हुई है जिसमें वो आपके छत से आने वाले कचरे को फिल्टर कर देता है। लेकिन हमें ये भी केयरफुल रहना चाहिए कि पानी जब नीचे जा रहा है तो नेचुरली और फिल्टर हो जाए, सो दैट्स गोज गुड। लेकिन ये भी परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से एक रेनी फिल्टर लगाया हुआ है। ये बीच वाली पाइप से वो कचरा अपने आप बाहर निकल जाता है और ये साइड वाली पाइप से पानी इस कंडीशन में रहता है कि आप उसको डायरेक्ट अपने सूखे हुए बोरवेल, अपने कुएं में छोड़ सकते हैं। मैम ने, कल्पना मैम ने अपने कुएं में उसे छोड़ा है। अगर आपको लगता है, क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगा फिल्टर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, जरूरी नहीं कि आप फिल्टर लगाएं, फिल्टर लगा भी सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास, हमारा इंटेंशन, हमारा विजन यही है कि ये पानी को वापस धरती में भेजना है, ना कि नाली में। दैट इज द ओनली मिशन, विजन, एंड वही प्रोसेस को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। कई लोग अपने घर में अनजाने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे होंगे, मिट्टी में पानी आ रहा होगा, मैडम के घर में सिर्फ 10 या 12%, 15% पानी इस फिल्टर के थ्रू जाता है, बाकी 80-90% पानी उनके खुले जमीन में वो छोड़ रही हैं, छत का पानी, और वहीं से वो सोख कर जाता है और उनके कुएं में जबरदस्त पानी का लेवल। ये एक और केस स्टडी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे एक बोरवेल है, बोरवेल के बगल में उन्होंने एक टंकी जैसा बनाया, नीचे कंक्रीट वगैरह कुछ नहीं किया और गिट्टी भर दिया और 2 ठो बीच में नंदा जैसा लगा दिया ताकि पानी को स्कोप मिले। जब पानी रफ्तार से आता है और आप उसको 2 इंच 3 इंच के पानी से पाइप से नीचे भेजेंगे जमीन में ना, तो वो इतना सोख नहीं कर पाएगा। तो जब हम बड़ी टंकी बनाते हैं उसमें थोड़ा नीचे पेबल्स, फिर ग्रेवल यानी कि गिट्टी और बालू रख देते हैं, तो वो पानी फिल्टर होके नीचे जाता है, उसको स्कोप मिलता है सोख करने के लिए। देखिए ये जुगाड़ कुछ नहीं किया भाई साहब ने। भाई साहब के घर में 3 फीट की जगह थी, 3 या 4 फीट लग रहा है मुझे फोटोग्राफ से। मार्केट में 300 से 400 रुपए में पुराना यूज किया हुआ टैंक मिलता है 200 लीटर का। कटक रोड में मैं कई बार देखता हूँ बिक्री होते रहता है। उन्होंने अपना रेन वाटर पाइप जो कि नाली में स्ट्रेट जा रहा था, एक उन्होंने 3 फीट में 3 फीट का शायद उसमें एक्सकावेशन किया, उसमें उन्होंने वो टैंक को बैठाया, साइड में गिट्टी डाली, उसके अंदर भी थोड़ा गिट्टी और बालू डाला और उसको कनेक्ट कर दिया। जितना पानी धरती सोख कर पाएगा करेगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो वो ओवरफ्लो में चला जाएगा। लेकिन हम ये फोकस करें कि हम कितना कर पा रहे हैं, कभी ये फोकस ना करें कि हम 100% करना था हम नहीं कर पाए। हम अपना पार्ट करें जो अपनी सुविधा से कर पा रहे हैं, बाकी फिर धीरे धीरे सब मेकअप किया जाएगा। पहले हम 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में आ जाए, फिर डिसाइड करेंगे कि अब हमको BMW में जाना है कि किस में जाना है, कि कितना एफिशिएंट करना है। ये एक स्टैंडर्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सेक्शन है जो कि टेक्निकल टर्म्स में है। मैं कहता हूं ये एक मॉडल है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा हो। हम जब
प्रोफेशनल बिल्डिंग्स बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक ट्रेंच, एक एक्सकावेशन करें, 6 फीट में 6 फीट में 6 फीट गड्ढा खोदें, 8 फीट में 8 फीट में 8 फीट, उसमें एक बोरवेल करें नीचे 20 फीट करीब का। एक्चुअली क्या होता है, ये बोरवेल करने से पानी को जल्दी धरती में भेजने का सुविधा होता है, लेकिन इस तरीके का बोरवेल करना वहीं चाहिए जहां वाटर लेवल कम से कम 80-90 फीट नीचे है। कटक जैसी शहरों में हम ये सब काम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या बोरवेल नहीं कर सकते, वहाँ वाटर लेवल बहुत हाई हो जाता है बारिश में, लेकिन भुवनेश्वर में डेफिनेटली पॉसिबल है। एक्चुअली घर बनने के बाद उसके अंदर में ऐसा बोरवेल छोटा सा 20 फीट का कराना बहुत मुश्किल है। अगर आप नया घर बना रहे हैं, बोरवेल करने के लिए गाड़ी आई हुई है, तो उसी टाइम प्रोग्राम करके सोच के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी 20-25 फीट का बोर करवा सकते हैं। नहीं करवाते हैं तो भी कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हम जैसे भी देसी तरीके से पानी को मिट्टी में भेजना है, ना कि नाली में। दैट इज द ओनली विजन। 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस। एक तो हमें अपना छत को साफ सुथरा रखना है ताकि बालू, मिट्टी, गंदगी उसमें ना जाए। हमारे जो छत पे जाली ड्रेन पाइप लगा हुआ है, वहां जाली लगा के रखें, जो नहानी ट्रैप बोलते हैं, ताकि उसको वहीं कंट्रोल किया जा सके। हमारा छत अगर एस्बेस्टस का बना हुआ है या फिर ऐसे कोई मटेरियल का बना हुआ है जिसमें वो चीज विद टाइम उसके साथ करोसिव होता है, इरोसिव होता है, माने उसके साथ इरोड होता है, वैसा मटेरियल को वहां से करना अवॉइड करें। एस्बेस्टस के छत में कैंसरस एलिमेंट होते हैं जो कि वापस अगर धरती के पानी में ज्यादा जाएगा तो हार्मफुल हो सकता है। हम जहां पॉसिबल है वहां करें, जहां नहीं पॉसिबल है उसे जाने दें। हम ये ध्यान रखें कि जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो पहला 1 या 2 बारिश के पानी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ ना दिखाएं और ड्रेन में जाने दें। मिट्टी में गिर सकता है, कोई असुविधा नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हमारे वातावरण में एट द हाई एल्टीट्यूड बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि डायरेक्टली हम उसको इंटेक करें तो हार्मफुल हो सकते हैं, तो हम उसे बह जाने देते हैं। पहली बारिश के बाद हम फिर बिंदास यूज कर सकते हैं। और हम बेसिक फिल्टर मीडियम यानी कि बालू की तरफ से, गिट्टी की तरफ से उसे बहने दें। एक सीजन खत्म हो गया तो बालू के तत्व के ऊपर आप देखेंगे हल्का सा मॉसेस, काला काला मॉसेस जमा हो जाएगा। तो बारिश के बाद ऊपर का 1 इंच बालू हटा के एक फ्रेश 1-2 इंच का बालू डाल दें। इट्स ए नेचुरल फिल्टर। दैट्स द ओनली प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिंपल तरीका है जिससे हम बारिश का पानी को धरती में भेजते हैं। कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है, मजा आएगा। करने के बाद अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाइए कि मेरे घर में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, और ये एक माने बात है जिससे आप यू शुड बी प्राउड ऑफ। दिल्ली में कई घरों में अपने घर के बाहर उन्होंने बोर्ड लगाया है। दिल्ली में फ्लाईओवर्स का पानी को वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। फ्लाईओवर्स के पाइप्स जो यहाँ पे आप देखते हैं भुवनेश्वर में, कोई भी फ्लाईओवर के बगल से चले जाइए, धड़ाधड़ पानी बहता जाएगा और पानी भरता जाएगा। दिल्ली के फ्लाईओवर्स के पानी सब धरती के अंदर जाते हैं। यमुना नदी में पहले बहुत फ्लड्स आता था और दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे बहुत सारे बोरवेल्स लाइक बोर्स क्रिएट किए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो एक्स्ट्रा पानी जब बारिश का आ जाता है वो वापस धरती के अंदर चला जाता है। तो नॉट ओनली लाइक सेविंग वाटर, इट कैन बी रिसोर्सेज टू अवॉइड जो वाटर एक्यूमुलेशन, जो बारिश में अधिकतर पानी भर जाता है। इस्कॉन टेम्पल के सामने पानी भर जा रहा था, अभी तो उसका पैसेज को ही चेंज कर दिया गया, हार्वेस्ट नहीं हुआ वो, उसे दूसरा ड्रेन का रास्ता दिखा दिया गया है। तो वो सब एरिया में क्योंकि माने उस एरिया के घरों में बिल्कुल भी ग्रीनरी कम है, वो पानी को बहा दिया जा रहा है, प्रॉब्लम आता है। हमारा विजन यही है, होना चाहिए कि हम अपने घर में थोड़ा सा जगह को सैक्रिफाइस करें, उसे धरती में जाने का जगह दें। आपको कभी भी कहीं भी भुवनेश्वर में एटलीस्ट लगे तो हफ्ते में मैं 1 दिन टाइम निकाल सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। कोशिश करें, अपने घर में करें, खुद से करें, कुछ भी खर्चा करने का जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर हमें घर बना रहे हैं तो 1000, 2000, 5000 रुपए खर्चा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा किए हैं, ऑलरेडी किए हैं और करेंगे, एंड आई विल बी देयर टू गाइड यू। आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल। Excuse me, sir, Mr. Gautam. I have a question. Actually, whatever you told, that was very nice, and congratulations to our presidents Sangeeta and Sagarika ji for arranging such an informative webinar. And I'm glad to see that Sagarika and Kalpana have already done rainwater harvesting project in their home. I just wanted to know that
You told about Cuttack and Bhubaneswar people, but we do have members in Chhattisgarh and eastern part of MP also. So what about them? If they want to do such projects, can you give them any such contact over there, or can you help them for this? And the same thing applies to Western Odisha also. मैम मैम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सा तरीका है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि अगर वेस्टर्न उड़ीसा में बहुत लोग हैं, मैं कनेक्ट कर दूंगा, लेकिन इसमें टेक्निकली हमें कोई टेक्निकल पर्सन की जरूरत नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री या ग्लोब हो, जहां वाटर लेवल बहुत नीचे है। कटक का मैं इसलिए बात किया क्योंकि कटक में अगर बारिश के दिन में आप 2 या 3 फीट भी खुदाई करेंगे तो पानी आ जाता है। तो वहाँ प्रैक्टिकली ऊपर का वाटर लेवल इतना हाई है कि हम हार्वेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन कहीं भी अगर वाटर लेवल नीचे है तो उसे वो डेफिनेटली हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को भी लगता है कि कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है तो मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ, वीडियो भेज सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इट्स बेसिक प्रोसेस, माने कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी अगर लगा कि ये चीज करना चाहिए, कहीं डूज एंड डोंट्स होते हैं कहीं जगह। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कई बार हम कुछ फैक्ट्रीज, माने कुछ इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, ये होता है, मैं देखा हूँ कटक में भी एंड बाकी जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में भी, उनको ड्रेनेज की सुविधा नहीं मिलती है और वो एक अनजाने में गलती कर देते हैं, बड़ा सा बोर क्रिएट करते हैं और पानी अपना कचरा नीचे भेज देते हैं। वो उस एरिया के पूरे पानी को खराब कर देते हैं। तो हमें अनजाने में कोई गलती नहीं करनी है। डूज डोंट्स, कहीं कभी किसी का सिचुएशन अलग है, प्लीज बात करें, डिस्कस करें कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपका सिचुएशन, आपका वहाँ का सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग है, बहुत सेंसफुली सिंपल तरीके से हम उसको हार्वेस्ट करें। So basically what I understood is that we do need a mason and a plumber. Plumber is important, mason the guidance. Exactly. And the guidance from you. That's all. Right. मैम गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस, खाली पानी को धरती में भेजना है। बस आपके साथ कांटेक्ट कर ले, कोई किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो तो वो गौतम जी से कांटेक्ट कर ले एंड वो आपको रास्ता बता देंगे। बेसिकली यही है। मैं व्हाट्सएप में पूरा अवेलेबल हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेट हो सकता है मैं रिप्लाई आने में, बट डेफिनेटली हमें एक टारगेट सेट करना चाहिए। आज अगर आज के सेमिनार में, आज के वेबिनार में 99 लोग एक्टिव हैं, अगर इसमें से 9 लोग, 9 भी ज्यादा हो गया, 5 लोग भी अगर किए, ऐसा मत सोचिएगा कि बारिश खत्म हो गया। बारिश हमेशा होगा। उड़ीसा में, भुवनेश्वर में हमारे बनी इतना कृपा है कि बारिश होता ही रहता है। 5 लोग का टारगेट लीजिए, 5 लोग कीजिए। अगले बार आप जब वेबिनार करेंगे या कुछ करेंगे, हम फिर करेंगे वेबिनार एंड फिर हम 10 का टारगेट लेंगे। मेक स्मॉल टारगेट्स, ऐसा टारगेट लीजिए। अभी क्वेश्चंस है गौतम जी। मिसेस कृष्णा महांती ने क्वेश्चन किया है जो मेरे मन में भी आया था कि इज द वाटर प्रोसेस्ड थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्रिंकेबल? विल वी बी एबल टू ड्रिंक इट? देखिए मैम, क्या होता है, बारिश के पानी में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो आपके एक्वागार्ड के थ्रू, जैसे हमने मैम के घर में भी देखा, उन्होंने उस बारिश के पानी को एक फिल्टर से होते हुए अपने सम्प में भेजा, सम्प से ओवरहेड टैंक में भेजा। जब वो ओवरहेड टैंक से वापस आएगा तो आपके एक्वागार्ड या एक बेसिक फिल्टर के मीडियम से आएगा एंड दैट इज ड्रिंकेबल। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं बारिश के पानी को डायरेक्ट एक जग में कलेक्ट करके ड्रिंक करना चाहेंगे, दैट मे बी हार्मफुल, दैट कैन बी हार्मफुल इन सम सर्कमस्टेंसेस, नॉट ऑलवेज। लेकिन इट्स बेटर कि बारिश का पानी अगर हम डायरेक्ट ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक्वागार्ड के थ्रू मेथड से ही आए। अगर वो आपके टैंक से आ रहा है एंड कुकिंग पर्पस में यूज हो रहा है, विच इज बॉइल्ड कुकिंग के प्रोसेस में, देन दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट, बारिश का पानी खराब नहीं है। बारिश का पानी जहां जहां गिरेगा, जहां जहां से बहते हुए आएगा, वो जगह साफ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और एक क्वेश्चन आया है, व्हाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट पिकिंग अप इन ओडिशा? Because DA-NIDA project was, why it is not picking up in India? DA-NIDA project was in operation in Odisha in 1991 on rainwater harvesting, and since 30 years have passed, but no advancement at all. तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया में क्यों प्रचलित? क्योंकि हम लोगों का 4000 साल पहले स्टेप वेल्स भी है, हम लोग का रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज वेरी मच प्रिवलेंट इन ओल्ड डेज, तो अभी क्यों नहीं है? हम खराब मत सोचेगा, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे गवार हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सबके घर के अप्रूवल ड्राइंग में अगर आप निकाल के देखें तो इट्स ए मैंडेटरी टर्म, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना ही चाहिए। हम हमारे प्रोफेशन में भी बना के देते हैं, लेकिन हमें कभी देखने नहीं जाते कि हम जिसके लिए अप्रूवल ड्राइंग बनाए थे वो किया कि नहीं।
जिसका घर बना वो ये देखता है कि मुझे अप्रूवल मिल गया, मुझे बनाने की जरूरत कोमल नहीं। थोड़ा फोन पकड़ाएगी प्लीज, मेरा फोन पकड़ा प्लीज। जो अप्रूवल अथॉरिटीज हैं वो देखने नहीं जाते कि आप अपने घर में किए कि नहीं। सब जगह मैंडेटरी है, नॉट इन तमिलनाडु, उड़ीसा में भी सारे अप्रूवल ड्राइंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना मैंडेटरी है, जिसमें आपने साइन किया है, एक एफिडेविट दिया है और आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी उसमें साइन करके दिया है। लेकिन यहाँ लॉस इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि कोई देखने नहीं आता। गवर्नमेंट में जो पॉलिसी लाई जिसमें उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम लाया जिसमें सब्सिडी दी है, उसमें उन्होंने फोकस किया कि हम कैसे अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें रादर देन कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। उन्होंने एक पैनल बनाया, 40 से 50 लोगों का सिलेक्शन किया, उनको एम्पैनल किया कि आप सिग्नेचर करेंगे, लोगों को सब्सिडी मिलेगी, एंड उसको मोर और लेस एक टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। हमको ना ही कोई सब्सिडी का वेट करना चाहिए, ना ही गवर्नमेंट के लॉस का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जब प्रॉब्लम आएगी तो सबको आएगी। बस फोकस करो आपके एनवायरमेंट, आपका घर, आपके घर के सामने वाला पार्क, आपके घर के सामने वाला थोड़ा सा खुला जगह, पड़ोसी का खाली जमीन, कहीं भी यूटिलाइज करके थोड़ा सा पानी को एक रास्ता दिखाएं कि वो सांस लेके नीचे जाए। दैट्स इट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। हमको कोई any suggestions for the place where water level is high like Cuttack? मैम वाटर लेवल इज हाई लाइक कटक, उसमें दो चीज है। टेबल देखिए दो टाइप का होता है, एक डीप एक्यूफियर होता है, एक हाई एक्यूफियर होता है। तो हाई एक्यूफियर यानी ऊपर ऊपर का पानी का लेवल जो कि टेम्पररी है, जो कि ऊपर नीचे होते रहता है, जिसको आप डायरेक्टली ड्रिंक कर सकते हैं। यानी कि 5-6 फीट का पानी का एक्सकावेशन करके आप उसको ड्रिंक नहीं कर सकते। वहां पे भी इनफैक्ट अगर हम जो IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का हम ये बनाते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाते हैं कटक के लिए, उसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट मैंडेटरी क्लॉज फॉर द प्लेसेस वेयर हैविंग ए हाई वाटर टेबल। वहां पे बहुत अच्छा वाटर का लेवल है, वहां जरूरत नहीं है, वहां पे माने भगवान का आशीर्वाद है। लेट्स फोकस कि जहाँ पे थोड़ा सा दूर है। आपको जान के हैरानी होगी कि जमीन के नीचे जो क्रैक्स हैं, जो कि जो एक्यूफियर है, वो बहुत अजीब है, उसको गेस करना बहुत मुश्किल है। ये जो बाबा जी आते हैं नारियल पकड़ के बता के जाते हैं बोरवेल कहाँ करना है, माने ऐसा शक्ति तो शायद माने हनुमान जी के पास भी नहीं होगा। तो ये एक्यूफेयर जमीन के नीचे इतना ताज्जुब है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए एक साइंटिफिक चीज भी है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 2-3 चीज को, आई एम टेकिंग सम टाइम। क्या होता है, जहाँ वाटर का लेवल अच्छा होता है वहां आप देखेंगे जनरली दीमक का पहाड़ बना होता है या सांप का घर बना होता है, क्योंकि वो नीचे में वाटर का लेवल अच्छा है तो उनको पानी नमी अच्छी मिलती है और गर्मी नहीं लगती है। तो ऐसे जगह में हम बोरवेल करने का कोशिश करते हैं। वो जो नारियल पकड़ के दिखाते हैं वो बेसिकली खोजते हैं कि चींटियों का बिल कहाँ पे हो और वहां पे पानी का नहीं वो बोरवेल करने के लिए कहेंगे, और 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि वहां पानी निकलेगा। तो कटक में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड, एंजॉय द वाटर। लेकिन जहां भी हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे संबलपुर हीराकुद डैम से करीब 20-25-30 किलोमीटर दूर में भी वाटर का ऐसा शॉर्टेज है, क्योंकि वहां पे पानी का क्रैक ऐसा है, माने वो पानी उस तरफ जाता नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे सारा पानी का मजा आप ही लेंगे, शायद सारा पानी कहीं और चला जाएगा आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया हुआ। लेकिन हम ये सोच के आगे नहीं बढ़ सकते, हमको एक कम्युनिटी में सोचना होगा, हमको हमारी विरासत, हमारे माने होमो सैपियंस सैपियंस माने ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा, सबको मजा लेना होगा। थैंक यू सो मच सर। एनी मोर? और एक क्वेश्चन आया है। Many government offices had the rainwater harvesting plants about a decade ago, but they have now become non-functional. Is it difficult to maintain them? Just wanted to know what they have become, why they have become non-functional now, in simple layman's terms. देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स देखिए अभी लार्ज स्केल में दिल्ली कर रहा है, आई डोंट नो अबाउट कि भुवनेश्वर में क्या स्केल में हुआ था कि नहीं, बट वी एक्चुअली डोंट माने अगर हम एक छोटे आज हम जो बात कर रहे हैं एक हाउस होल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर ये सब पानी जहाँ गिर रहा है, सेव द वाटर वेयर इट फॉल्स, अगर हम उसी लेवल पे घर के लेवल पे उसको करें तो ज्यादा इजी है मेंटेन करना, बस बालू का एक ऊपर का लेयर साफ करना होगा। लार्ज स्केल में इट डिपेंड्स, लाइक हम उतना डीप में कभी गए नहीं, लेकिन आई डाउट अगर हमारे पास उड़ीसा में भी ऐसा सिस्टम्स बना हुआ है जहाँ लार्ज स्केल रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, क्योंकि रेन वाटर इज मोर ऑफ ए माने इन सिचुएशन थिंग। अगर मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये मेरे से 200, 300, 400 मीटर की दूर की बात हो रही है, क्योंकि धरती के नीचे का क्रैक, ये ऐसा नहीं है कि सीवर लाइन पूरे भुवनेश्वर का एक कोने में जा रहा है और वहां ट्रीटमेंट हो सकता है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
बट ऐसा नहीं है कि बारिश का पानी सब जगह बह के एक कोने में जाएगा, हम उसी कोने में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, क्योंकि धरती का भी एक कैपेसिटी है सोक करने का। सो हम उसको एक सेंट्रलाइज थिंग नहीं बना सकते, हम उसको जितना डिसेंट्रलाइज करेंगे, जितना छोटे छोटे आकार में बहुत जगह पे करेंगे, उतना इजीली कर पाएंगे। Any more questions? Krishna ji wants to say something. I think कृष्णा जी को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। Krishna ji, unmute yourself. Yes, yeah. Architect, I was just going through, I mean, so I could know that you're an architect, sir. So I was just, क्योंकि संबलपुर में, because I live in Sambalpur, and मुझे जहाँ तक मालूम है सब कलेक्टर like गवर्नमेंट ऑफिसेस में, क्योंकि माय हस्बैंड हैज हिमसेल्फ कंस्ट्रक्टेड बहुत सारी जगह में ये बनाए हैं प्लांट्स। मैं इसीलिए जानना चाहती थी क्योंकि वो अभी नॉन फंक्शनल, क्योंकि हम लोग का वी हैड दिस प्रोजेक्ट at that time around 2009-10 में, it was rampant, like so many offices, it was kind of mandatory for all the offices also to have, क्योंकि my husband himself has made these plants, and then in I'm sorry, actually Andhra में तो हर घर में था, because we wanted to know, this was a new concept for us that time. तो कैसे होता है वो जो सांप कैसे बनता है उसका layers, and I also happened to make one model for my son who was in school that time, and but अभी जैसे फिर से ये आया है तो I was just asking my husband कि क्या हाल है वो जो बनाया था, तो बोले वो तो काम नहीं, तो क्या तो उसका मेंटेनेंस क्या करना पड़ता है, because अगर सॉरी आपको इंटरप्ट करा। Sorry, no, ठीक है, that's it. I just wanted to know. सफाई करनी है बस, हर साल टाइम से साफ सफाई कर दी तो ठीक है, 4-5 साल करना भूल गए तो थोड़ा सा वो मिट्टी गिट्टी बालू जो भरे थे वापस निकाल के साफ सुथरा करके वापस भर दें। अगर कोई है ऑलरेडी प्लांट बना हुआ है, क्या उसको रिवाइव कर सकते हैं? डेफिनेटली मैम, इट्स नॉट ए प्लांट। देखिए मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूंगा, प्लांट सब जब आता है No, not plant exactly. It's a some sort of like layers and pit. It's exactly a pit. जिसको हम साफ सफाई करके दोबारा रेडी कर सकते हैं। सेम सोक पिट, सेम ओल्ड पंप which is not working, same borewell which is dried up, everything can be utilized. Please don't make any other extra expenses. Use the only thing which is available with you. Thank you so much. Thank you. Most welcome, ma'am. Respected Reena ji, can we take up rainwater harvesting as a project? Yes, of course. It's there in the goal itself. जो होप की हमारी आई है एनवायरमेंट के अंदर, वाटर कंजर्वेशन के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का गोल दिया गया है, प्रोजेक्ट दिया गया है। इवन उड़ान के अंदर भी यही है। आप उड़ान के अंदर इसको कवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली होप के अंदर ये कवर हो जाता है। ऑब्वियसली आज की हमारी जो वेबिनार की प्रयास ही इसीलिए था कि आप लोग को समझ में आए कि ज़्यादा टेक्निकलिटी इसमें ज़रूरत नहीं है, कम खर्चे में कम जगह पे घर में हम कैसे इसको कर सकते हैं। Yes, you can take it up as a project and you can take the help of Mr. Gautam also anytime you need. I think एक और question भी है संगीता, does too much boring reduces water level? Should we go for borewell? पद्मा महांती जी ने पूछा है। गौतम जी please answer to this question. Does too much boring reduces water level? Should we go for borewell? Gautam ji has to unmute himself. Gautam ji, please unmute yourself. Gautam ji, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ यस हाँ अभी हुआ अनम्यूट, हो नहीं रहा था अनम्यूट, आई एम सो सॉरी। हाँ तो क्या क्वेश्चन था, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे मैम? कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? does too much boring reduces the water level? Should we go for borewell? क्या हमको बोरवेल करना चाहिए? ज्यादा बोरिंग क्या वाटर लेवल को रिड्यूस कर देता है? Both things are mostly similar. See, borewell क्या है, डग वेल जो हम बोलते हैं, it works in a principle of spring. जहाँ वाटर लेवल अच्छा है वहाँ पे आप एक बोरवेल खोदते हैं करीब 10-15 फीट चौड़ा, जो गाँव में पाया जाता है, आजकल शहरों में तो नहीं है।
वहां पे एक स्प्रिंग एक तरीके से माने साइड से जमीन से पानी अपना एस्केप रूट पा के ऊपर आते जाता है और आप उस पानी को यूज करते हैं। बारिश में पानी ऊपर आता है, गर्मियों में पानी थोड़ा कम हो जाता है। जिस जगह पे वाटर लेवल और कमता जाएगा, आपके डग वेल यानी कि बोरवेल में पानी कमेगा। यही हम जब मेशिनाइज्ड बोरवेल करते हैं, माने मैं कुआं का बात कर रहा था पहले, वेल का बात कर रहा था, अब बोरवेल। बोरवेल क्या है? एक 6 या 8 इंच का वही होल है, पतला सा। हम ज्यादा नीचे गए और पानी को निकाले। डेफिनेटली आप जब ज्यादा पानी निकालेंगे एक जगह से और उसे वापस जमीन में जाने का रास्ता नहीं देंगे तो वाटर लेवल ज्यादा दिन तक साथ नहीं देगा। आपको जान के मैंने एक नेचुरल बात बता रहा हूँ, जैसे जिस एरिया आप एक बोरवेल का एक बोरिंग की दुकान में जाएंगे जो पंप बेचता है, तो वो पूछता है आपको कि आप कहाँ के लिए पंप खरीद रहे हैं, और आपको जान के यानी वो कहता है लाइक इट्स एक्सपीरियंस व्हाट आई एम शेयरिंग। सो ही आस्क्ड कि आप इस एरिया में रहते हैं, तो अभी वहाँ वाटर लेवल पहले तो 100 होता था, आजकल 200 है। आप 300 के लिए बोरवेल ले जाइए ताकि फ्यूचर में जब वाटर लेवल गिर जाएगा तब तक आपका पानी आएगा। हमें ये सोच लाने की जरूरत है कि वो 200 को 300 का तैयारी नहीं करे, 100 में कैसे लाए। बोरवेल ज्यादा करेंगे तो वाटर लेवल कमेगा ही कमेगा, डेफिनेटली कमेगा। थोड़ा एक कैलकुलेटिव एनालिसिस करेंगे ना कि मैं घर में एक इंसान के लिए 135 लीटर पानी चाहिए टेक्निकली, हम लोग अपने घर में 200 से 250 लीटर पानी को बहाते हैं डेली पर हेड, खाना बनाना, साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोना, सब कुछ मिला के। अगर हम एक घर में 5 आदमी हैं तो करीब 1500 लीटर पानी एक टंकी तो डेली खाली होता ही होता है। हम बारिश का पानी जब बचाएंगे, धरती में भेजेंगे और हिसाब करेंगे, तो आपको जान के खुशी होगी कि जितना पानी आप यूज कर रहे थे उससे 10 गुना पानी आपने सेव किया, एंड दैट्स ए गुड फीलिंग। वो तो टोटली डिपेंड करेगा कि आपका नीचे का एक्यूफियर कैसा है, लेकिन डेफिनेटली आप पानी को एक्सप्लॉइट करेंगे नीचे से तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, वो नीचे चला जाएगा। और एक क्वेश्चन आया है गौतम जी, संध्या जी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर हैं, उन्होंने कहा है कि कैन यू प्लीज हाईलाइट हाउ टू गो फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अपार्टमेंट्स, रेन वाटर कंजर्वेशन जो भी हम करते हैं अपार्टमेंट्स में कैसे करें। देखिए, अपार्टमेंट इज ए कम्युनिटी, हम एक कम्युनिटी का बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले सोच को बदलने की जरूरत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अपार्टमेंट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोसेस। जो भी खर्चा होगा कम से कम 8, 10, 16, 20 लोगों में बढ़ जाएगा। सबसे अच्छी बात है छत सबका कॉमन है, 5 घरों का छत एक ही है, खर्चा कम गया, पहला बात। दूसरा बात, साफ सफाई हमको अपार्टमेंट में रखना है, सब कुछ हम चाहते हैं, तो कम्युनिटी में फीलिंग लाएं। अच्छी बात क्या है कि 20, 25, 50, 100 घरों का पाइपलाइन कम है, माने कम पाइपलाइन में ज्यादा लोगों का छत का पानी आ रहा है वहां पे। लेकिन अपार्टमेंट का जब हम अप्रूवल्स लेते हैं तो 20 फीट की जगह क्लियर रखना है, वहां से गाड़ी का मूवमेंट होना है, फायर ब्रिगेड का मूवमेंट होना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम आइडेंटिफाई करें कि छोटी सी जगह, कहीं ना छोटा सा पार्क बना होगा, बच्चों का झूला वूला लगा होगा जो बिल्डर बना के दिया होगा बेचने के लिए, थोड़ा बहुत ग्रीन स्पैच भी दिया होगा, वहीं पे थोड़ा सा जगह निकालें, वहां पे एक पिट बनाए। ऐसी जगह में जहां हमारे पास जगह कम है, वॉल्यूम ज्यादा है, वहां पे हम 10-15 फीट का बोर भी मार सकते हैं ताकि वो जल्दी सोख करेगा, कम जगह लेगा, ज्यादा पानी को धरती के अंदर जाने देगा। अपार्टमेंट इज ए बेस्ट प्रोसेस, लाइक उसमें क्या कई लोग हैं, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो वहां पे हम टेक्निकल गाइडेंस ले सकते हैं अपार्टमेंट में, किसी का हेल्प ले सकते हैं, और या खुद से भी कर सकते हैं। वहां पे हम कम जगह यूटिलाइज करें, जैसे लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, एक बोर कर दें, एक ठो वेल जैसा बना दें, जो नॉन दो हम 3 फीट का कहीं यूज करते हैं तो वहाँ 4 फीट का यूज करें, करीब 8-10 फीट गहराई में जाए, उसके अंदर करीब 10-15 फीट का एक बोर कर लें, तो कम जगह में ज्यादा पानी को हम अंदर भेजेंगे। लेकिन मेरे को लगता है अपार्टमेंट इज द इजीएस्ट, जहाँ पे आप इतने सारे पार्टीज कर लेते हैं, न्यू ईयर फंक्शन मना लेते हैं, होली मिलन कर लेते हैं, दीपावली मिलन कर लेते हैं अपने अपार्टमेंट में, इतना यूनिटी रहता है, तो वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत ईजी है। यू शुड गो फॉर ए अपार्टमेंट कल्चर, और अपने अपार्टमेंट के बाहर फिर बड़ा सा बोर्ड लगाएं कि रेन वाटर हार्वेस्टेड अपार्टमेंट। तो ये कंपटीशन होना चाहिए, रादर यू शुड फ्लोट ए कंपटीशन कि कौन सा अपार्टमेंट कर रहा है। यू शुड रिकॉग्नाइज पीपल डूइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पब्लिश देम, तो इससे लोगों को देख के इंटरेस्ट आएगा। Nice suggestion. I think past district chairman Rajrupra ji wants to ask something. Rajdi, you can unmute yourself. I think she can unmute herself. Everybody can unmute themselves and ask. Rajdi, the ones who want to ask, they please unmute yourself. हेलो, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है गौतम जी आपके लिए कि जो हम रेन वाटर से वाटर टेबल को रिचार्ज करना चाहते हैं,
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are audible. Please go ahead. Am I मतलब जो मैं हम अगर वाटर टेबल को रिचार्ज कर रहे हैं रेन वाटर से, तो क्या उसमें कंटेमिनेशन की संभावना भी हो सकती है? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमारा वाटर टेबल भी कंटेमिनेट हो जाएगा ऐसे, तो उसके लिए कुछ है क्या? मैम, अगर आप बारिश का पानी को डायरेक्ट अपने बोरवेल में छोड़ देंगे तो आपका वाटर टेबल कंटामिनेट हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने बारिश का पानी को धरती में छोड़ते हैं, जो धीरे धीरे सोख होकर अंदर जा रहा है, या हम जैसे बात की सोक पिट्स बना के छोड़ देते हैं जो कि धीरे धीरे धरती में जा रहा है, तो उससे वाटर लेवल पे कोई हार्मफुल नहीं होगा। एक एग्जांपल दूंगा मैम, एक छोटा सा एग्जांपल। हमारे घर में सेप्टिक टैंक होता है जो कि हमारे बाथरूम का वेस्ट को रिसीव करता है। उस सेप्टिक टैंक का आउटलेट एक सोक पिट में जाता है और सोक पिट का आउटलेट ड्रेन में जाता है। जब वो सेप्टिक टैंक और सोक पिट का पानी सोख हो के धीरे धीरे हमारे वाटर टेबल में चला जाता है, हमें दिक्कत नहीं होती है। ये तो बारिश का स्वच्छ पानी है, डायरेक्ट छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। लीव इट थ्रू सोक पिट्स, ट्रेंचेस, हम कभी भी डायरेक्ट छोड़ना नहीं चाहेंगे। कुआं में भी हम जो कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें कि कुआं में छोड़ा हुआ पानी को हमें फिल्टर मीडियम की तरह छोड़ें, जो कि बालू और गिट्टी के थ्रू आए। अगर हम कोई सूखा हुआ बोरवेल में भी छोड़ रहे हैं तो भी उसको एक फिल्टर मीडियम से ही छोड़ें। फिल्टर मीडियम इज ए बेसिक फिल्टर मीडियम, बहुत कोई हाई फाई फिल्टर मीडियम नहीं है, लेकिन वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म इन रेन। हमें ये ध्यान रखना है कि जहां हमारे छत पे गिर रहा है तो हमारा छत साफ सुथरा हो, ऐसा ना हो कि छत में ज्यादा गंदगी हो, एंड उसे हम धरती में जाने का रास्ता दिखाएं। लेकिन बहुत जरूरी है कि धरती में हम पानी को भेजें। Thank you. Manisha wants to say something. Manisha, you can unmute yourself. Manisha, you can unmute yourself. Yeah. बोलिए। Hello, sir. So just I want to ask कि इसका कोई टाइम पीरियड होता है क्या? जैसे कि 7-8 साल एक बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लिया तो उसका कोई टाइम पीरियड है, कितने बार उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए? इसका कितना सर्विस दे सकता है ये? मैम, जनरली जो स्टैंडर्ड्स कहता है, अगर हमारे फिल्टर में एक बालू का लेयर है तो हर बारिश के मौसम के बाद, यानी जुलाई अगस्त के बाद, सितंबर अक्टूबर की तरफ या अगले बारिश के पहले, हम बालू के ऊपर के टच लेवल एक लेयर बालू का पतला सा आधा इंच या इतना सा लेयर हटाएं एंड उसमें एक नया बालू का लेयर डाल दें। वो बालू का लेयर जनरली बारिश में भीग भीग के वो थोड़ा सा काला पड़ जाएगा, मॉसेस हो जाएंगे उसमें। तो ब्लैक मॉसेस जैसे हो जाएंगे, नहीं भी हो सकते हैं लेकिन हो सकते हैं। उसको साफ करें एंड एक नया लेयर बालू का 1-2 इंच का डाल दें। दैट इज द ओनली मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आपके घर में 15-20 ऐसे ट्रेंच है तो 2 दिन लेबर को लगेगा। 15-20 ट्रेंच है तो, या किसी दिन भी आप गार्डनिंग करते करते नॉन रेनी सीजन में उसको कर सकते हैं। और जो कवर हो सर, बिल्कुल जैसे कवर है वो हमारे ऐसे गार्डन के नीचे बना हुआ है, दिखता भी नहीं है, तो उसमें भी कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है? कवर इज नॉट ए प्रॉब्लम, मिट्टी है ना। अगर वहां पे अगर ड्रेन जा रहा होता देन इट्स ए प्रॉब्लम, लेकिन अगर कवर है, मिट्टी है, तो मिट्टी से ही तो वो बहता हुआ जाएगा। बी प्राउड दैट आपका घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। पुट ए बोर्ड, मेक पीपल अवेयर, दैट्स द बेस्ट थिंग। Definitely. Okay, sir. Thank you. Most welcome, ma'am. And I would like to mention over here, Rotarian Smaran Kumar Mishra, engineer Smaran Kumar Mishra ji is here. I think it was in 2013, he had helped us and we had done a rainwater harvesting project in a school through that your charcoal filtering and everything. And that was very nicely running, and the school children, they were using it as a science project of their school, and they were using those water for drinking purpose also. So later on उन्होंने कुछ 4-5 साल उसका मेंटेनेंस भी किया। आई थिंक नाउ अभी उसका इतना मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, फिर भी वी आर ट्राइंग टू अगेन डू द मेंटेनेंस एंड रिकवर इट। सो थैंक यू मिस्टर स्मरण भाई फॉर दैट हेल्प। एंड एनीवन Thank you. Thank you. Anyone, any help, any question, any more questions? I think Sangeeta, can we do a thing? Even I had talked to the General Coordinator Lopamutra that we can prepare a leaflet and spread the awareness. You can take the help of Gautam ji also. Yeah, definitely we can do that. Do that please. Yeah. Thank you all. And we can I will ask Gautam ji to share a small PPT which we can share everywhere, because now everything is online.
एंड डिजिटली अगर हम स्प्रेड करें तो ज्यादा स्प्रेड होगा, आई थिंक सो द बिल्कुल मैम, लेकिन स्टेप लेना पड़ेगा, लाइक अवेयरनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप ले। एक को देख के 4 करेंगे ज्यादा इजी है, लिफलेट्स 1000 बार we are now going to put a competition, as you told. Yes, it should be. Household competition, so it will be done. Definitely we'll work on this. And any more questions? आके दे देना। So before going to the next agenda, किसी ने पूछा है कितना एक्सपेंस होता है जनरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, तो गौतम जी ने कहा वैसे कुछ ज्यादा एक्सपेंस है नहीं, कोई भी कर सकता है, बहुत कम एक्सपेंस में। कितना जुगाड़ लगा पाएंगे उस पे है, जितना जुगाड़ से करेंगे उतना कम खर्चा आएगा। माने 4 चक्का तो नैनो भी हो सकता है और BMW भी हो सकता है, 4 चक्का होना चाहिए। तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, चाहे आप वो पुराना ड्रम से करें, वो नंदो लगा के करें, या किसी साइंटिस्ट को बुला के हाई फाई तरीके से करें, पानी नीचे जाएगा, घूम फिर के पड़ोसी को भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा। That's so nice. थैंक यू। ये आपका डेलिब्रेशन सुन के मुझे लग रहा है कि हमारे 3 to 6 डिस्ट्रिक्ट 3 to 6 में जरूर कुछ लोग तो आगे आएंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए इस साल जरूर सोचेंगे और कुछ करेंगे भी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर डेलिब्रेशन। आई थिंक इट हैज हेल्प्ड एवरीवन। एक छोटा सा लाइन ऐड करना चाहूंगा, इट्स नेवर लेट। लाइक आप कभी ऐसा मत सोचें कि बारिश का सीजन खत्म हो गया है, दिसंबर में करो, जनवरी में करो, आज करो, कल करो, हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कभी ऐसा मत सोचिए कि इस साल का सीजन चला गया है, सीजन हमेशा है। जब दुख आएगा, जब पानी की कमी आएगी, वो हर मौसम के लिए आएगी। डू इट टुडे, एवरी डे इज द फैंटास्टिक डे। कभी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें, टेक ए टारगेट, अचीव इट, मेक ए बिग फ्लैक्स, पुट इट इन द जयदेव विहार कि हमने इतना पानी बचाया, ताकि लोग देखें, उसको लेके उनमें में उत्साह है। और वो भी एक आजकल BMC लिस्ट ऑफ बिग डिफॉल्टर्स लगाता है बड़े बड़े जगहों पे। अब लिस्ट ऑफ बिग वाटर हार्वेस्टर, तो लोगों को इंस्पायर करने की जरूरत है जी। जैसे बोलते हैं ना, अब नहीं तो फिर कब, वही वाला सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके। Thank you very much, Sangeeta. Before going to the next agenda, I want to say something over here. My dear friends, September is going to be very crucial for all. That prediction is also coming that COVID-19 is going to be very, very crucial. So my request, sincere request to all of you, please do not come out of home, do not go outside, and maintain all the government norms. आप लोग मास्क पहनते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए। घर बैठ के हम काफी सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे आज की प्रोजेक्ट देखिए, आज गौतम जी बता के गए, आप प्लानिंग कीजिए, ओवर फोन बात कीजिए, एंड कॉन्टैक्ट आपके घर में ही बनाना है। आप प्लम्बर से बात कीजिए या फिर किसी से भी बात कीजिए, वो प्लानिंग करके रखिए। लेकिन मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, सितंबर खत्म होने तक आप घर से मत निकलिए, घर बैठ के जो भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इना जी, आपका ये बात एक्चुअली बहुत ज्यादा ही रेलेवेंट है इस टाइम में। And one more thing, yes, you can definitely arrange such nice webinars also. And tomorrow is तो घर बैठे बन गया, घर बैठे ही प्रोजेक्ट कर लिए। Tomorrow is a very informative webinar on plastic and e-waste management by Innoville Club of Jabalpur Midtown. The exact information will be given by the club president. So do attend that. Do take informations from such webinars and do work on that sitting in home also. Sitting in home also, you can do a lot of things. So do concentrate on that now. Thank you, Ina ji. Thank you, Gautam ji. Thanks a lot. Now, I would request the club editor of Innoville Club of Bhubaneswar, InfoCity Bhubaneswar, to release the e-bulletin, because because it is a digital age, every month we are trying to prepare a e-bulletin. So our club editor, Mrs. Nivedita Sarangi, will release this month's e-bulletin. Thank you, Sangeeta. Good evening and Innoville Namaskar to you all. I am Nivedita Sarangi, editor of Innoville Club of InfoCity Bhubaneswar.
Actually, as all you know, earlier we release our bulletin twice a year, but this year we decide release it every month. So it will be my pleasure to release the bulletin. Info will August edition. Hope you all like it. Thank you. In this, we have showcased the pictures in which the mass distribution, the construction workers ko khana dena, oxygen park, door, friendship day celebration, district level, and our members are spending their time attending to quizzes. We celebrated virtual flag hoisting, and with the Rotary, we also celebrated the flag hoisting. So these all pictures, with all these pictures, this e-bulletin is filled up with all this. This is the senior citizens. Thank you so much, Nivedita. Thank you so much. Now we would like to present our guest speaker and our district chairman, our chief guest, our district chairman, the mementos. It is not the basic mementos, it is our pledges which we would like to make. To our district chairman, Mrs. Ina Purohit, both the clubs, Innerville Club of InfoCity Bhubaneswar and Innerville Club of Bhubaneswar Royal, together pledged to make 2 oxygen parks for making the environment cleaner. For our guest speaker, Mr. Gautam Kumar Agarwal, both our clubs, Innerville Club of Bhubaneswar Royal and Innerville Club of InfoCity Bhubaneswar, we pledge to work on one more water harvesting scheme this year and provide nutritious food to senior citizens in an old age home. This is our way to honor you, sir, our way to honor you, ma'am. Now I would like to request the Vice President of Innerville Club of Bhubaneswar Royal, Mrs. Samal, to present the vote of thanks. Ma'am, please unmute yourself. Good evening to all of you. It is a proud privilege for me to offer the vote of thanks in this program. We had a very interesting and enlightening webinar today on rainwater harvesting. Rightly, the theme is Jal Hai to Kal Hai.
which sensitizes us on importance of water for our future generations. United Nations has warned that the next world war will be for water if sufficient steps are not taken by us now. Thomas King had said, of all the substances that are responsible for life, water is the most important, most familiar, and most wonderful, but most people know very little about it. In fact, water is the elixir of life. Today, the speakers have clearly described the present situation of water scarcity and also predicted our future if we do not care for water right now. We have enough rain every year. We should utilize the rainwater directly or recharge our groundwater so that water level in wells and tube wells go up. We, the women of our families, play a major role in conservation and preservation of water. This webinar would sensitize all of us for economical use of water and save our earth for water disaster. I offer my heartfelt thanks to the chief guest, District Chairman, Mrs. Ina Purohit, for inaugurating the seminar and giving her valuable suggestions. I also offer my heartfelt thanks to Mr. Gautam Agarwal, the keynote speaker, for his encouraging words. Your presentation has sensitized all of us to make rainwater harvesting more popular. My thanks to President Sangeeta Agarwal, Innovate Club of InfoCity Bhubaneswar, and President Sagarika Samal, Innerville Club of Bhubaneswar Royal, for conducting this webinar on this important subject, which is the need of the day. I also thank to all the respected PDCs, all EC members, all president and members of all the Innerville clubs. I am also thankful to Rotarian Vibhuti Das, President of Rotary Club of Bhubaneswar InfoCity, and Dr. Basant Das, President of Rotary Club of Bhubaneswar Royal, for their support. Rotarians from various clubs who have joined the webinar are made the program a success. Thank you again. Ma'am, hello. Sangeeta ma'am. Something is gone wrong. Hello. Sangeeta ma'am, am I audible? Sangeeta ma'am, am I audible? Yes, yes. Okay, okay. Thank you, thank you. Thank you so much, Mrs. Amal. Now, I would like to request the District Vice Chairman, Mrs. Manisa Srivastav, to acknowledge, put her acknowledgement. Thank you, Sangeeta. Good evening, everyone. On behalf of all executive former past district chairmen and members of District 3 to 6, I extend heartfelt thanks to both host club president, Innovate Club of InfoCity Bhubaneswar, Mrs. Sangeeta Agarwal, Secretary Sharmishta Das, Innovate Club of Bhubaneswar Royal, President Sagarika Samuel, and Kalpana. We also thanks to all other members of host club for hosting district webinar on rainwater harvesting. I also thanks to all my dear Innovate sisters for their kind presence and with us throughout the session. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. It was a huge pleasure on our part to host such an informative webinar, which will be beneficial for not only our district, for not only our state, but for our country, the humanity. Thank you. So now I would request all the members to please stand up in their own places in the honor of our national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all. Now the meeting is adjourned. Now I would request Mohit to unmute all so that if someone wants to speak something. Congratulations, Sangeeta and